خداوند میرے بہت پیارے بھائی اور بہنوں، جہاں بھی آپ لوگ ہیں، میں محنت کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئیے ہم دعا کے ساتھ شروع کریں۔ پیارے باپ، ہم شکر گزار ہیں تیری ساری برکتوں اور نعمتوں کے لیے جو آپ نے ہمیں دی ہیں۔ میں محنت کرتا ہوں باپ کہ اس وقت جو بھی بات چیت کی جائے وہ سب آپ کو پسند آئے۔ خداوند میں ایک سننے والے کے لیے محنت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ سب دلوں کو تیار کیجیے۔ خداوند میں اپنے ہونٹوں کو، اپنے مائنڈ کو اور اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ خداوند مجھے توفیق دیجیے کہ میں وہی چیزیں بولوں اور اسی ڈھنگ سے بولوں جو آپ چاہتے ہیں اور آپ کا نام جلال پائے۔ پیارے یسوع میں پورے طور پر ہم سارے اپنے آپ کو پسند پیش کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہو، ہمیں لیڈ کر، ڈائریکٹ کر۔ پیارے یسوع ایک حوالہ سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ ہاں میرے پیارے بھائی اور بہنوں، مجھے بڑی پھر کافی دیر کے بعد یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ کے ساتھ خدا ان کا کلام اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج سے جو ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں وہ کرسمس کے پروگرامس ہیں، اور اس سارے مہینے میں جو بھی پروگرام ہوں گے وہ کرسمس ریلیٹڈ ہوں گے، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم آج سب سے پہلا میسج جو ہے میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر وہ پیشن گوئیاں جو یسوع کے آمد کے لیے ہوئی تھی۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا اس کے لیے وہ اس طرح پیشن گوئیاں کی گئی ہوں اور وہ شخص یا وہ پرسن اس کے مطابق آیا ہو اس دنیا میں، لیکن یسوع مسیح کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کم سے کم 50-60 ہیں، لیکن میں نے آج تو صرف 8 ہی رکھی ہیں۔ چلو 60 کی بجائے 8 رکھی ہیں آج، تاکہ ہم ان کو کور کر سکیں کچھ۔ تو ایسٹر جو ہے میرے بہن بھائیوں، ایک ایسا کرسمس ایسا امپورٹنٹ اہم واقعہ ہے، اس نے ساری تاریخ انسان کو بانٹ کے رکھ دیا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، میں کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی۔ میں بہت سال ہوئے دلی سے لاہور آ رہا تھا جہاز میں، تو ایک آدمی سے بات ہونے لگی تو بڑا خوش ہوا کہ میں روحانی طور پر بات کر رہا ہوں اور روحانی چیزیں بتا رہا ہوں، تو وہ بڑا خوش ہوا۔ تو ایسے بات کرتے کرتے میں نے بتایا، یہی چیز کہی کہ یسوع کی پہلی آمد جو ہے اس نے ساری دنیا کی تاریخ کو بانٹ کے رکھ دیا۔ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف دا ہسٹری، ناٹ اونلی تو کہنے لگا جی ہاں آپ تو کرسچن ہیں نا، تو آپ تو یہی کہیں گے۔ میں نے کہا نہیں صاحب ایسی بات نہیں ہے۔ پھر ایک تو اور بات ہوئی تو پھر کہنے لگا کہ آپ، میں نے کہا سر آپ اپنا پاسپورٹ دکھائیے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کا جو ریلیجن ہے، آپ کا جو سن ہے، میں یہ 2008 کی بجائے میں آپ کا سن لکھ دوں، کاٹ کے لکھ دوں۔ ایسے پین میرے ہاتھ میں پکڑا تھا تو اس کا پاسپورٹ بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ لگا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا دیکھو دنیا میں جہاں بھی جاؤ، یہ کیلنڈر جو ہے یسوع کی پہلی آمد نے دنیا کے ساری تاریخ کو بانٹ کے رکھ دیا۔ جب بھی تاریخ لکھتے ہو اٹس بی سی ہوتی ہے بیفور کرائسٹ، اے ڈی کئی لوگ بڑا غلط سمجھتے ہیں اس کو۔ اے ڈی جو ہے وہ آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے ساری دنیا میں اپنی قبر کو خالی چھوڑ کے جا کے اپنے سارے دوستوں کو، عزیزوں کو، شاگردوں کو ملا اور کئی لوگوں پر ظاہر ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے، وہ یسوع ہے۔ تو آفٹر دا ڈیتھ نہیں ہے۔ وہ دو لاطینی زبان کے لیٹن ورڈز کہتے ہیں۔ اینا لفظ وہی ہے جس سے انگلش لفظ اینول نکلا ہے۔ اے اس کے لیے آتا ہے، اے ڈی جو بولتے ہیں ہم، اینا، اے از فار اینا، دوسرا لفظ ہے ڈی، ڈی لکھتے ہیں نا، تو ڈی کا مطلب ہے ڈومینی، اس سے لفظ ہے ڈومینی، ڈومینی کا مطلب ہے کنگ اور دا رولر، یا ڈومینین لفظ اسی سے نکلتا ہے، یا ڈومین لفظ بھی اس سے بنتا ہے۔ سو اس کا مطلب ہے ان دا ایئر آف دا لارڈ جیسے کہتے ہیں۔ تو یہ خداوند کی پیدائش، حالانکہ بڑے سادہ حالات میں، میرا نہیں خیال کہ ہم جو سب سن رہے ہیں، ہم بولنے والا میں بھی شامل ہوں اس میں، کوئی ایسے چرنی میں پیدا ہوا تھا، پھر بھی اس چرنی میں
यीशु की पैदाइश ने सारे तारीख इंसान की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। तो कितनी जबरदस्त चीज है कि खुदा पाक ने हमें ऐसी तौफीक दी है कि हम उस पर पूरा ध्यान लगाएं कि उसने इस तारीख इंसान को बांट के रख दिया। मेरे लिए कई दफा मैं ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करता हूँ, तो ब्लैक बोर्ड पे लिख के देखता हूँ अक्सर कि एक लंबी सी लकीर खींच के तो लिखता हूँ कि ये टाइम है। खुदा ने टाइम को भी क्रिएट किया है, बाकी सारी चीजों को खुदा ने बनाया तो टाइम भी बनाया है। आपको पता है कि अगर सूरज ना हो तो दिन रात और दिन का और टाइम का अंदाजा नहीं हो सकता। तो पहले 3 दिन खुदा ने और चीजें बनाई, चौथे दिन खुदा ने सूरज और चांद बनाया था। आप बाइबल के पहले तौर पर पढ़ के देख लें तो आप देखेंगे कि चौथे दिन खुदा ने सूरज और चांद को बनाया। लेकिन खुदावन यीशु मसीह के जो पहले लफ्ज है बाइबल में, खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, तो पहली जो स्टेटमेंट बनाने की है, खलक करने की है, वो क्या है? लेट देयर बी लाइट, कि रोशनी हो जाए, रोशनी हो गई। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा की क्रिएशन में एक चीज है टाइम, और जिस तरह बाप बेटा रूपा तस्लीस हम मानते हैं, उसी तरह टाइम जो है वो भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक पहले हिस्से को क्या कहते हैं? पास्ट, माजी। दूसरा हिस्सा जिसमें हम अब रह रहे हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट, हाउ। और वो जो आने वाला है उसको मुस्तकबिल, फ्यूचर। तो मेरे अजीजों, एक लंबी सी लकीर खींच के मैं ब्लैक बोर्ड पे लोगों को दिखाता हूँ, देखो ये टाइम है जिसमें हम रह रहे हैं। और फिर दोनों तरफ एक छोटी सी सर्कल सा बना के, थोड़ा सा कर्व सी बना के बताता हूँ कि इटर्निटी में खुदा ने टाइम बनाया। और गॉड इज इटर्नल, खुदावन अब्दी है, उसने वक्त को बनाया। और उस वक्त में हम देखते हैं कि यीशु की, फिर मैं वहां दिखाता हूँ कि इस तारीख इंसान में सबसे ग्रेटेस्ट इवेंट दैट डिवाइड्स द ह्यूमन हिस्ट्री इज द फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसी तरह अब दूसरा जो ग्रेटेस्ट इवेंट इस दुनिया में होने वाला है, वो होने वाला है बहुत नजदीक, बाइबल की सारी प्रोफेसीज नबूवतों के मुताबिक। मैं अक्सर लोगों को इनकरेज करता हूँ कि मत्ती 24 बाब और लूका 21 बाब पढ़ के देखिए, वो सब चीजें जो यीशु ने बताई थी अब हो रही हैं। मैंने हिजकिय्याह 38 और 39 बाब के लिए भी बताया था। बहुत सी गरम गरम हार्ड चीजें जो हो रही हैं अभी मिडल ईस्ट में और अपने रशिया में और दूसरे कंट्रीज में, वो कलाम के मुताबिक लिखी हुई, बल्कि वहाँ बहुत से जगहों का नाम भी लिखा हुआ है। हालांकि बाइबल तो बहुत पुरानी किताबें बहुत पुराने वक्त में लिखी गई थी। तो मेरे लिए हम देखें कि हिस्ट्री है क्या। अगर मैं कभी कभी ऐसे जब ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो लोगों को बताता हूँ कि हिज स्टोरी, हिस्ट्री लिखो तो ऐसा लगता है ना, हिज स्टोरी। जब हम कैपिटल एच, बड़ा एच करके लिखते हैं तो दैट इज स्टोरी ऑफ गॉड। जब हम छोटी एच लिखते हैं तो दैट्स द स्टोरी ऑफ मैन। तो एक छोटा सा मजाक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ सुनाया था, यहाँ लेडीज को बहुत ज्यादा लिबर्टी 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 चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। अभी अब्यूज होता है, अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन वो मैंने सुना था कि ये जोक है कि लेडीज कहती हैं कि हम उस कॉलेज में नहीं जाएंगे जहाँ हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। जैसे ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, दूसरे लफ्ज पढ़ाए, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने कहा क्या हुआ? प्रोफेसर ने पूछा कि नहीं ये नहीं, हम इसको हिस्ट्री क्यों कहते हैं? हर स्टोरी होना चाहिए, ये हिज स्टोरी हम नहीं पढ़ेंगे। अगर इस सब्जेक्ट का नाम बदलो तो फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री ना कहो, हर स्टोरी कहो। तो ये बड़ी सारी चीज है कि दुनिया में क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, लेकिन खुदा मालिक है। लेकिन उसने अब्दियत, पता है, पहले बाइबल के पहले सफे में पढ़ के देखो तो खुदा ने जब सब चीजों को बनाया तो छठे दिन जब आदम को बनाने खुदा आया, खुदा ने किया, तो खुदावन ने एक बड़ी जबरदस्त बात की, और वो क्या थी? आओ हम इंसान को अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाएं। कितनी जबरदस्त चीज है। मंकी, डंकी, चीता, ज़ीब्रा, ये सारे एनिमल जो हैं बड़े खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, कोई बड़े हैं। तितलियां देखो कितनी खूबसूरत लगती हैं, मैं देखते रह जाता हूँ कई दफा। और इतनी खूबसूरत चीजें, फूल देखो। हाँ, मेरे घर में बहुत गुलाब के फूल हैं, और आगे पीछे देखे मैं हैरान होता पूरा, कैसे रंग, एक ही
طریقہ بھول کے لے ہوئے ہیں اور رنگ فرق ہے. خدا نے کتنا خوبصورت سب کچھ بنایا. لیکن میرے عزیزو، جب آدم کو خدا نے بنانا تھا، خدا نے کیا کہا؟ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنائے. خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اپنی صورت، اور اس کے بعد خدا آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے آدم، میں نے بنا لی ہے، گیٹ اپ، کھڑا ہو جا. ہو سکتا اگر ہوتا تو ایک دم ہو جاتا، کیوں نہیں؟ دیکھو ہماری زمین 25,000 میل سرکل ہے اس کے راؤنڈ. ہماری دنیا جو ہے تو وہ کہتے ہیں سورج چڑھتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے. میرے عزیزوں بڑے دھیان سے سنیں، سورج کبھی چڑھتا اور ڈوبتا نہیں ہے. ہماری دنیا جو ہے ہم چکر میں جب جانے پہنچ رہے انسانوں، ہم ہی چکر میں ہیں. ہماری دنیا جو ہے وہ سرکل گھوم رہی ہے خود ہی 1052 میل پر آور. اس طرح جو 25,000 میل کی ہمارے گلوب کے چاروں طرف ہے نا، وہ پورے ہو جاتے ہیں 25 گھنٹے میں. سو اس طرح ایک دن پورا ہوتا ہے تو زمین جو ہے ایک چکر، ایک سرکل لگا لیتی ہے اپنا. تو سورج جہاں سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، جہاں رات ہوئی. اب ہمارے پاکستان میں پورے 12 گھنٹے کا فرق ہے. اب یہاں رات کے 8 بج رہے ہیں، آپ کے وہاں دن کے 8 بج رہے ہیں. میں کئی دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو آپ لوگ آگے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مت سمجھو کہ ہم جو انڈیا پاکستان سے ہیں یا ان ملکوں سے ہیں ہم پیچھے ہیں. امریکہ ہم کسی چیز میں پیچھے نہیں ہے. دیکھو خدا ان کی مہربانی ہے، خدا ان بہت برکتیں دے رہا ہے. ہاں کئی چیزیں ہیں جن میں ہمیں بہت فائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور خدا ان کی مدد چاہیے ہمیں. لیکن میں نے کہا کہ ہم آپ سے جب میں نے کہا جب دوڑ ہوتی ہے، ریس ہوتی ہے، تو اس میں جو کوئی 2 منٹ بھی 1 منٹ بھی پہلے آ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ میرے جہاں سے میں آیا ہوں ہندوستان پاکستان سے، تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے آگے ہیں آپ سے، ایگزیکٹلی 12 گھنٹے. ہاں لوگ ہنستے ہیں لیکن ہوا آپ نے تو کیا بتایا. میرے عزیزوں، خداوند نے وقت کو بنایا، اور جیسے میں پہلے بتا رہا تھا وقت کے کیا حصے ہیں. جس طرح انسان نے جب انسان کو بنایا، ہاں وہ بتا رہا تھا میں آدم کے لیے، تو خدا نے بجائے آدم کو کہہ کے کھڑا ہو جا، خداوند نے کیا کیا؟ یہ ایسا ایک کام کیا جو خدا نے کسی اور چیز میں نہیں کیا تھا، کسی جانور میں، کسی جگہ، صرف انسان کے لیے. اور اس میں لکھا ہے وہی بائبل میں پہلے صفحے میں دیکھیں، اور اس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا. اس کی وجہ سے وہ اٹرنل اپنی سانس جو خدا نے انسان میں پھونکا ہے، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، یا تو آسمان پر خدا کے ساتھ یا دوسری جگہ ابلیس کے ساتھ. سب سے بڑا فیصلہ زندگی میں کئی دفعہ لوگوں کو مثال دیتا ہوں، یہ ہے کہ ہم کیسا گھر لیں، کہاں کام کریں، کیسا وغیرہ 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 وغیرہ. تو فیصلے ڈسیزن ہر بات کے لیے. اس دنیا میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو بہت بڑا فیصلہ ہے یہ زندگی کا، کیونکہ یہ فیصلہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا. اٹ کین بی ٹچ آف ہیون آن ارتھ اور اٹ کین بی ٹچ آف ہیل آن ارتھ. میرے عزیزوں، مجھے پتا ہے اور میں اپنے سبجیکٹ پر آنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے بڑا فیصلہ زندگی میں یہ ہے کہ یسوع نے نکودیمس کو جب وہ رات کو چوری آیا تھا یسوع کو ملنے، اسے بتایا، حالانکہ اس نے تعریفیں ہی کی تھی یسوع مسیح کی، یسوع نے پھر بھی اسے ایک لفظ اچھا نہیں کہا کہ شاباش شاباش. انگلش میں کہتے ہیں یو میڈ مائی ڈے. بھائی واہ، چلو کوئی تو مجھے سمجھتا ہے یروشلم میں سب یسوع کو مارنے کی کوشش کرے، ختم کرنے کی، اور اس نے گڈ فرائیڈے ہم کہتے ہیں، اس نے یہی کر گئے. لیکن یسوع نے نکودیمس کو ایسے ہاتھ سامنے کر کے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو. میرے عزیزوں، جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے ہم آسمان پر خدا ان کے پاس نہیں جاتے. یسوع نے توما کو کیا بتایا تھا؟ یہ توما وہی ہے جو ہندوستان تک پریچ کرنے آیا، اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بڑے درد کے ساتھ، میں نے کہا اسی علاقہ میں جہاں سے میں ہوں پنجاب میں، وہیں اس کو نیزہ مار کے کسی نے مار دیا تھا، شہید کر دیا تھا. توما رسول ہند جس کو کہتے ہیں ہم. ہاں تو اس نے وہاں، میں نے کہا وہاں تک خدا ان کے کلام پہنچایا، اور خدا کا شکر ہے کہ مجھے یہ توفیق ملی ہے کہ میں خدا ان میں نئی پیدائش پا چکا. لیکن میرے عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ یسوع کی آمد سب سے پہلی ہسٹری کا سب سے بڑا کام ہے، جو ایک ہے جو 2000 سال ہوا، اور دوسرا اس کی آمد ثانی بہت جلدی ہونے والی ہے. ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار رکھیں.
क्योंकि यीशु के आने के फौरन बाद 7 साल अबलीस जो दुश्मन है हमारा शैतान, वो 7 साल इस दुनिया पर हेल ऑन अर्थ, मतलब लूसीफर को, शैतान को, मुखालिफ मसीह को मौका मिलेगा कि 7 साल वो इस दुनिया में बादशाही करे। खैर, ये मुकाशवा की किताब मैं कई चर्चों में पढ़ा चुका हूँ, तो फिर किसी वक्त और मजीद बात करेंगे। लेकिन अभी यीशु के आमद अव्वल के बारे में 7-8 पेश करना चाहता हूँ आपको। टाइम का मैंने ध्यान नहीं दिया, खैर खुदा बरकत दे, मदद करे मेरी। अच्छा, सबसे पहली पेशन गोई मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है बाइबल के दूसरे सफ़े में। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उनको कहा था कि देखो सब कुछ तुम्हारे लिए है, सब बहुत खूबसूरत और एक्साइटिंग था, लेकिन ये सिर्फ एक दरख्त का फल है बाग अदन में जो नहीं खाना। तो हम देखते हैं कि बाद इसके तीसरे बाब की पहली ही आयत में, और सांप को दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी तरफ का फल तुम ना खाना। तो यहाँ से मेरे अजीजों बात हुई, और हालांकि आदम ने हवा को बता रखा था कि नहीं ये फल नहीं खाना, तो देखो वो उसने खुद भी खा लिया और जाके आदम को भी दे दिया, और दोनों ने खा लिया, और इसलिए बनी नौ इंसान आज तक गुनाह में लथपथ है। लेकिन 15 आयत में सबसे पहला जो खुदा उनका नबूवत है कि वो यीशु इस दुनिया में आएगा, वो ये है, और इसे ध्यान से सुनिए मेहरबानी से। 15वीं आयत, पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत। खुदावन आदम से बात की, हवा से बात की, शैतान से भी बात की, और वहाँ खुदावन कह रहा है, शैतान को चैलेंज कर रहा है, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा, औरत की नस्ल से जो आएगा, और तो उसकी एड़ी पर काटेगा। जब सर कुचला जाता है तो मौत होती है, खत्म सब कुछ, लेकिन जब एड़ी पे काटा जाता है तो उसका मतलब है उसको परेशानी होगी। अच्छा, तो ये हम देखते हैं कि ये सबसे पहली पेशन गोई है मेरे अजीजों, यीशु की हमने लिखा है कि वो तुझसे होएगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहली जो पेशन गोई यीशु के लिए पैदाइश 3 बाब की 15 आयत में की गई है। मैं अक्सर बड़ी खुशी से लोगों को बता देता हूँ कि बड़ी मशहूर आयत है जो सारी क्रिश्चियनिटी की सनदी आयत है, सारी मसीहत की, और वो क्या है, यूहन्ना 3:16। हाँ, एक खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, ये कितनी जबरदस्त चीज है कि खुदा ने जो पैदाइश 3:15 में हवा को बताया था होएगा, वो हम देखते हैं। उसके साथ आप जरूर गलतियों 4 बार की 4 आयत लिख लें तो अच्छा है, नहीं तो दोबारा सुन के भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर पेन पेंसिल लें तो अच्छा है। तो ये पहली पेशन गोई ये है कि खुदावन ने औरत को बताया था कि औरत की नस्ल से, और हम देखते हैं औरत की नस्ल, इंसान बच्चे सब पैदा होते हैं वो और तरीके से होते हैं, मर्द और औरत का इकट्ठा होना। कच्चा मरियम ने भी फरिश्ते को ये कह दिया था कि मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, और आजकल जैसे लोग गुनाह में लथपथ हैं, शादी से पहले भी इकट्ठे रह रहे थे, नहीं, वो खुदावन के मुकद्दस और डेडिकेटेड लोग थे। हाँ, इसलिए यूसुफ भी बेचारा बड़े परेशान हो गया जब उसको पता चला कि मुकद्दस मरियम प्रेग्नेंट है। हाँ, तो मेरे लिए हम देखते हैं ये पहली पेशन गोई पैदाइश 3 बाब 15 आयत की गलतियों 4 बार 4 आयत में पढ़ के देखिए। अच्छा, दूसरी जो है वो ये है कि खुदा ने इब्राहिम को भी बताया, तो हम उसमें देखते हैं पैदाइश 12 बाब की 2 और 3 आयत में आप पढ़ के देखिए। वहाँ वादा किया गया है, खुदावन ने कहा है कि निजात देने वाला आएगा और मैं तुम्हें इब्राहिम बरकत का सबब बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि मत्ती 1 बाब लिख लीजिए, मत्ती 1 बाब पहला ही बाब, नए अज़ामे का पहला ही सफा, मत्ती चैप्टर 1 वर्ष 1 और 2। और फिर हम देखते हैं कि इसहाक, इब्राहिम का बेटा इसहाक था। अब इब्राहिम यीशु मसीह से कोई 2000 साल पहले था, ये पेशन गोई वहां हुई। इसहाक कोई उससे चंद 100 साल बाद में था। और हम देखते हैं कि इसहाक को आप देखिए वही पैदाइश
17 बाब की 19 आयत में पढ़ के आप देखिए। और वो नबूवत कहाँ पूरी हुई? लूका 3 बाब की 34 आयत में देखिए, बाकायदा इसहाक का नाम आता है। उसके बाद देखिए, और किसी शख्स के लिए आज तक कोई इस तरह की पेशन गोई नहीं हुई। यीशु के लिए बताया गया कि वो कहाँ पैदा होएगा। छोटा सा गांव था बैतलहम, उसके लिए बताया गया है कोई 500 साल पहले, यीशु के पैदा होने से 500-600 साल पहले बताया गया। और हम देखते हैं कि मीका नबी के 5 बाब की 2 आयत में आप पढ़ के देखें कि वो बैतलहम शहर में पूरा पैदा होएगा। और हम देखते हैं कि ये कहाँ नबूवत पूरी होती है? मत्ती 2 बाब की 6 आयत, लूका 2 बाब की 4, 5 और 7 आयत में। मैं फिर दोहराता हूँ, अगर आप लिख रहे थे लिख नहीं सके। मीका 5 बाब की 2 है नबूवत, और मत्ती 2 बाब की 6 आयत, लूका 2 बाब की 4, 5 और 7 आयत में पढ़ के देखिए किस तरह से ये पेशन गोई पूरी हुई। यीशु के आने से 500-600 साल पहले ये पेशन गोई की गई थी। और फिर हम देखते हैं कि यीशु कंवारी मरियम से पैदा होगा। उसके लिए भी मेरे अजीजों ये कोई 600 साल, तकरीबन 600 साल पहले, नहीं 750 साल पहले ये इसके लिए ये पेशन गोई की गई थी। यसाया 7 बाब उसकी 14 आयत में ये पेशन गोई की गई थी। और हम देखते हैं कि लूका 2 बाब में आप पढ़ के देखें, लूका 2 बाब में देखें और उसमें आप पढ़ के देखेंगे तो ये आप सब आयतें वहां पढ़ सकते हैं, 30 से लेकर 32 तक, और 26-27 आयत भी पढ़ सकते हैं। तो वहाँ ये लिखा गया है कि यीशु एक कुंवारी से पैदा हुआ है। और फिर छठा जो है प्रॉमिस वो ये है कि बहुत से बच्चे मरवाए जाएंगे। और हम देखते हैं कि हेरोदिस जो उस वक्त बड़ा जालिम बादशाह था, उसने अपने ही फैमिली के मेंबर्स को मरवा दिया था। जब कोई किसी की बात नहीं मानता था तो वो उसने ऐसा ही किया। लेकिन यिर्मयाह नबी जो यीशु से कोई 600 साल पहले नबूवत करता था, यिर्मयाह में आप पढ़ के देखें 31 बाब उसकी 15 आयत में, 31 बाब उसकी 15 आयत में पढ़ के देखें तो वही पेशन गोई कि यीशु जब पैदा होएगा तो बच्चे मरवाए जाएंगे। आपको पता है कि जब मजूसी आए थे यीशु को देख ढूंढने, और वो सीधे महल में चले गए और जाके उन्होंने हेरोदिस से उनसे पूछा पैलेस में जाके महल में कि बताइए वो बच्चा जो पैदा हुआ कहाँ जो बादशाह होएगा इसराइल का, सबका बादशाह होएगा। तो वो बड़ा परेशान हो गया, लेकिन चुपके चुपके उनको बताया नहीं कि उसको कितना गुस्सा आया अंदर ही अंदर। तो बाद में क्या हुआ, उसने बैतलहम के सारे बच्चे जो 2 साल और उसके नीचे थे, 2 साल से नीचे थे, सब बच्चे मरवा दिए। लेकिन देखिए वो पेशन गोई जो बच्चे मरवाने के लिए यिर्मयाह ने 31 बाब में की थी, मत्ती 2 बाब उसकी 16 और 18 आयत में पूरी हुई। फिर हम देखते हैं मेरे लिए 7वीं पेशन गोई है, यीशु बच्चे को मिस्र ले गए। हाँ मैंने भी बताया ना कि किस तरह बच्चे मरवाने की। जब वो तीनों लोग आए गिफ्ट लेके, 3 नहीं ज्यादा थे, लेकिन गिफ्ट जो उन्होंने दिए मजूसियों ने वो 3 थे। हाँ तो वो जो गिफ्ट लेके दिए सब कुछ किया। उसी रात फरिश्ते ने यूसुफ पर जाहिर होके कहा कि तू इस बच्चे को लेके तो निकल जा अभी, क्योंकि ये इस बच्चे को बादशाह इस बच्चे को मरवाने की फिक्र में है। तो मूसा ने उसने यूसुफ ने क्या किया, वो उसी रात, मेरे अजीजों आपको मैंने पहले भी बताया था एक दफा, शायद आप में से कुछ को याद होएगा कि मुकद्दसा मरियम पर एक दफा जब्राइल जाहिर हुआ, लेकिन मुकद्दसा मरियम पर यूसुफ पर 4 दफा जाहिर हुआ, और चारों दफा उसने उठ के वही किया जो खुदावंद ने उसको बताया। तो हम देखते हैं कि यिर्मयाह 31 बाब 15 आयत में जो प्रोफेसी की गई थी वो मत्ती 2 बाब की 16 से 18 आयत में हम पढ़ सकते हैं। अरे मेरा ख्याल नहीं सॉरी, वो गलत आयत बता गया मैं आपको, सॉरी माफ। यीशु बच्चे को मिस्र लेके बात कर रहा था, मेरा ध्यान ऊपर चला गया टॉप वाली आयत में। अच्छा वो है होशिया 11 बाब की 1 आयत, होशिया 1 बाब यानी 11 बाब की 1 आयत में लिखा है कि किस तरह बच्चे को मिस्र में लेके जाएंगे। और मत्ती 2 बाब
मत्ती 2 बाब 14 से 15, जैसे फरिश्ते ने मैं आपको बयान कर रहा था कि यूसुफ को बताया कि बच्चे को लेके तो मिस्र को भाग जा, तो वो निकले रातों रात। हाँ मेरे अजीजों, अब आखिरी एक रह गया है कि यीशु को खुदा का बेटा माना गया है। ज़बूर 2 बाब, मेरे अजीजों ये बड़ा जरूरी है कि आप पढ़ें ज़बूर। आपको पता है ज़बूर की किताब यीशु के आने से कोई 2000 साल पहले, 1000 साल पहले लिखी गई थी। आज अब उसको 3000 साल होने जा रहे हैं। यीशु के आने से 1000 साल पहले दाऊद बादशाह था यरूशलेम में। तो हम देखते हैं मेरे अजीजों, मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, आपको बताऊँ। तो ज़बूर 2 उसकी 4 से 8 आयत में पढ़ता हूँ। ज़बूर 2 और उसकी 4 आयत को ध्यान से सुनिए। खुदावंद का मज़का जो आसमान पर तख्त नशीं है हंसेगा, खुदावंद उनका मज़का उड़ाएगा, तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। आप पूरा बाप पढ़ेंगे ना तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी कि लोग जो खुदा के खिलाफ इतनी बातें करे थे उसका जवाब हुआ। अच्छा, तो छठे आयत में लिखा है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोई मक़दस सयोन पर बिठा चुका हूँ, मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा, 7वीं आयत, खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तो मुझसे पैदा हुआ है, मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए बख्शूंगा। ये खुदा बाप खुदा बेटे को बता रहा है, यीशु मसीह को। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि ये ज़बूर 2 और फिर उसके बाद आप यशाया में भी पढ़ के देख लेना। यशाया 9 बाब उसकी 5 से 7 आयत में पढ़ के, 6 और 7वीं आयत, यशाया 7 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत में पढ़ के भी देखिए कि यीशु को खुदा का बेटा माना गया है। फिर मत्ती 3 बाब और उसकी 17 आयत में यही पेशन गोइयां पूरी होती हैं। अब ज़बूर कोई 1000 साल यीशु मसीह से पहले दाऊद ने लिखे थे और यशाया नबी कोई 750 साल यीशु के आने से पहले था। ये सारी पेशन गोइयां मेरे अजीजों खुदावन में पूरी हुई हैं। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे और मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मौका दिया कि हम फिर आज मिलकर खुदा उनके कलाम की स्टडी कर सके। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।